Good morning to all of you students. Now today we will discuss remaining questions of exercise 8.2. Exercise 8.2 question number 11 is if 2 multiplying this matrix 3 4 5x plus matrix 1 y 0 1 equal to this matrix z 0 10 5 then find the value of x y and z. ये आपको गिवन है और आपको x y z की वैल्यू फाइंड करनी है. नाउ सॉल्यूशन गिवन दैट ये आपका गिवन है. Now 2 multiplying this matrix means 2 multiplying the each number. अगर 2 से इस पूरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब 2 का सभी each एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे. 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 into 5 10 and 2 into x 2x plus this second matrix write down as it is equal to right side write down as it is. Now addition of these two matrix. एडिशन करिए corresponding elements एडिंग. ठीक है, एडिशन कैसे होता है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं. 6 + 1 6 + 1 8 + y 10 + 0 and 2x + 1. राइट हैंड साइड राइट डाउन एज इट इज. 6 + 1 7 8 + y 8 + y 10 + 0 10 and 2x + 1 2x + 1. Now these two matrices are equal. Now by definition of equality of matrices, definition of equality of matrices is when two matrices are equal then their corresponding elements are equal. दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं? जब उनके corresponding elements equal हो. corresponding elements equal होने का मतलब this first element a11 equal to a11. ठीक है, element in first row and first column z equal to 7, तो z equal to 7 आ गया. now a12 element element in first row and second column, element in first row and second column. y plus 8 equal to 0, y plus 8 equal to 0 or 8 plus 8 equal to y. Then y plus 8 equal to 0 means y equal to 0 minus 8, that is minus 8. And last is a22. a22 element is 2x plus 1 equal to 5. 2x plus 1 equal to 5 means 2x equal to 5 minus 1, that is 2x equal to 4, and 2x equal to 4 means x equal to 4 upon 2, that is x equal to 2. Now value of x is 2, value of y minus 8 and value of z 7. Now value of x 2 first answer, value of y minus 8 second answer, and value of z 7 third answer. After question number 11, next we will discuss question number 14. Question number 14 is if A equal to this matrix, B equal to this given matrix and C equal to this matrix. These A, B, C are given and 5A plus 2B equal to C. This is also given. Then find the values of A, B and C. ये आपको A मैट्रिक्स गिवन है, ये B मैट्रिक्स गिवन है और ये C मैट्रिक्स गिवन है. और आपको 5A plus 2B equal to C अगर गिवन है तो स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c a b c की वैल्यू फाइंड करनी है. नाउ गिवन दैट 5a plus 2b equal to c, 5 पुट द वैल्यू ऑफ a मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कीजिए प्लस 2 पुट द वैल्यू ऑफ b मैट्रिक्स एंड इक्वल टू c मैट्रिक्स राइट डाउन हियर. c मैट्रिक्स इक्वल टू c 9 and -1 -11. Now 5 multiplying this matrix means 5 multiplying each element of this matrix. 5 का हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करिए. 5 into 2 10, 5 into a 5a, 5 into -3 -15 and 5 into 5 25. Next 2 multiplying each element of this matrix. 2 into -2 -4, 2 into 3 6, 2 into 7 14 and 2 into b 2b equal to right side write down as it is. Now adding these two matrix, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे? इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कीजिए. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन्स a11 एलिमेंट 10 plus -4 10 -4, a12 एलिमेंट 5a plus 6 5a plus 6, -15 plus 14 -15 plus 14, and next 25 plus 2b 25 plus 2b equal to right hand side write down as it is. Now 10 minus 4 6, 5a plus 6 write down as it is. 14 minus 15, 14 minus 15 equal to -1 and 25 plus 2b equal to 25 plus 2b. ये भी आपका write down as it is लिखेंगे. अब left hand side equal to right hand side, this means that these two matrices are equal. Now by definition of equality of two matrices,
देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल मीन्स A11 एलिमेंट A11 एलिमेंट, दैट इज C इक्वल टू 6। ठीक है, पहला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कर दिया तो C इक्वल टू 6 आ गया। नेक्स्ट इज A12 एलिमेंट A12 एलिमेंट, 5A plus 6 equal to 9. 5A plus 6 equal to 9 mean 5A equal to 9 minus 6 and 9 minus 6 means 3. 5A equal to 3 means A equal to 3 upon 5. And last A22 element 25 plus 2B equal to minus 11. 25 plus 2B equal to minus 11 means 2B equal to minus 11. 25 शिफ्ट होगा लेफ्ट से राइट में, 25 बन जाएगा minus 25. 2B equal to minus 11 minus 25 minus 36 and B equal to minus 36 upon 2, that is equal to minus 18. Now therefore value of A equal to 3 upon 5. Second answer, value of B equal to minus 18 and value of C equal to 6. That is the answer of this question. Now after exercise 8.2, now next topic is multiplication of matrices. अब मैट्रिक्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे हम ये पढ़ेंगे ना। टू मैट्रिसेस ए एंड बी, टू मैट्रिसेस ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स आर सेट टू बी कंपैटिबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी। मतलब दो मैट्रिक्स ए और बी, उनका प्रोडक्ट ए बी तभी कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। मतलब अगर दो मैट्रिक्स ए और बी, उनका अगर मल्टीप्लाई करें, उनको अगर कंपेटिबल करें इस प्रोडक्ट ए बी में, दो मैट्रिक्स ए और बी, उनका मल्टीप्लाई ए और बी वो तभी होगा जब ए मैट्रिक्स का रो, नंबर ऑफ रो इन दिस मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो इन दिस मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इन दिस मैट्रिक्स ए। ए में जो कॉलम होगा, उस कॉलम जो मैट्रिक्स है उसके नंबर को, वो नंबर जो हो वो बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। देयरफॉर इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, अगर कोई ए मैट्रिक्स m by n ऑर्डर का है, एंड बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by p, ए मैट्रिक्स m by n ऑर्डर का हो और बी मैट्रिक्स n by p ऑर्डर का हो, तो उनका ए बी जो होगा वो किस ऑर्डर का होगा? ध्यान रखना, ए मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा वो बी मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो। ऑर्डर क्या होता है? रो इनटू कॉलम। तो ये ए मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा, ध्यान रखिएगा, वो बी मैट्रिक्स के अगर रो के इक्वल हो तभी आपका प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। देन ए बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by p। ध्यान रखिएगा, अगर ए m by n मैट्रिक्स का कोई ऑर्डर का मैट्रिक्स हो और बी आपका n by p मैट्रिक्स का कोई ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स हो, तो ए बी किस ऑर्डर का होगा? ये दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे तो ए बी आपका प्रोडक्ट करने के बाद वो किस ऑर्डर का बनेगा? m by p ऑर्डर का। ठीक है, फिर से देख लीजिए। देन टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेट टू बी कंपैटिबल। दो मैट्रिक्स ए और बी आपके तभी प्रोडक्ट हो सकते हैं इफ एंड ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। मतलब ए और बी आपके तभी प्रोडक्ट में ए बी कहलाएंगी जब नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए में जो कॉलम होगा, उस कॉलम जो है वो नंबर ऑफ कॉलम वो बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस नाउ वी हैव टू टेक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज लेट A matrix equal to 3 5 minus 1 2 and B matrix equal to 4 7. Now A matrix, this is a matrix of order 2 by 2. ये आपका किस ऑर्डर का है? 2 by 2 ऑर्डर का है, 2 row and 2 column. Now B is a matrix of order 2 by 1. ये B किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम है, तो 2 by 1 ऑर्डर का ये आपका मैट्रिक्स है। तो ए बी किस ऑर्डर का होगा? ध्यान दीजिए, ए 2 by 2 मैट्रिक्स है और बी क्या है? 2 by 1 मैट्रिक्स। तो आपको ए बी फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी। ध्यान से देखिए, ये दोनों आपके ए और बी कैसे हैं? ए मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो बी मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, क्योंकि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? रो इनटू कॉलम होता है और बी मैट्रिक्स का भी रो इनटू कॉलम होता है। लेकिन यहाँ पर ए मैट्रिक्स का जो कॉलम है
वो बी मैट्रिक्स के रो के इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हो तभी इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। और वो प्रोडक्ट क्या होगा, वो प्रोडक्ट करने के बाद जो ए बी का जो ऑर्डर होगा वो होगा आपका 2/1। क्या बचा, प्रोडक्ट करने के बाद ये दोनों सेम हो गए तो उसका जो रिमेनिंग ऑर्डर बचा ए बी मैट्रिक्स का वो क्या बचा, 2/1 का ऑर्डर हुआ। मतलब ए और बी का जो प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करने के बाद इनका जो प्रोडक्ट करने के बाद जो ए बी का ऑर्डर आएगा वो 2/1 मैट्रिक्स का होगा। नाउ देयरफॉर ए बी इक्वल टू 3 5 -1 2 एंड बी मैट्रिक्स 4 7। अब यहाँ पे देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई हमेशा रो इनटू कॉलम फॉर्म में होता है, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, रो इनटू कॉलम। तो ध्यान रखिएगा रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब रो का कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम, 3 × 4 3 × 4 प्लस सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाइंग सेकेंड एलिमेंट 5 × 7 5 × 7। ध्यान दीजिए ये जो रो है इस रो को इस कॉलम पर ओवरलैप कर देंगे। 3 फर्स्ट एलिमेंट रो का फर्स्ट एलिमेंट और कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, 3 × 4 3 × 4 प्लस सेकेंड एलिमेंट ऑफ रो इंटू सेकेंड एलिमेंट ऑफ कॉलम, 5 × 7 5 × 7। ठीक है, अब सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड रो है और ये कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। रो का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम से, रो मल्टीप्लाइंग बाई कॉलम। सबसे पहले क्या किया, इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब सेकेंड रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या होता है, रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम। -1 × 4 -1 × 4 प्लस 2 × 7 2 × 7। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई प्लस सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाइंग सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, ध्यान से देखिए फर्स्ट रो मल्टीप्लाइंग कॉलम एंड दिस सेकेंड रो मल्टीप्लाइंग दिस कॉलम। 3 4 12 प्लस 5 7 35 -1 × 4 -4 प्लस 2 7 14 45 35 प्लस 12 35 प्लस 12 47 एंड 14 - 4 10। ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई हमेशा रो बाई कॉलम के ऑर्डर में होता है। नाउ आंसर दिस ए बी इक्वल टू 47 10। और क्या कहा था, ए बी किस ऑर्डर का बनेगा, 2/1 ऑर्डर का। तो ध्यान दीजिए ये ए बी जो है वो 2/1 ऑर्डर का ही है, 2 रो एंड 1 कॉलम। देन दिस ए बी इक्वल टू 47 10, दैट इज द आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल।